Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is nature of physical science. In the earlier video I have also discussed about some facts or nature of physical science also. Today I am going to talk about the remaining facts and nature of physical science. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ भौतिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में, उसके तथ्य के बारे में। पूर्व के वीडियो में मैंने 5-6 कम से कम 6 फैक्ट्स या उसकी प्रकृति के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं जो बचे हुए 4 हैं उस फैक्ट्स या जो नेचर है, प्रकृति है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह टॉपिक मेथड पेपर 7 जो कि B.Ed सेमेस्टर 2 के अंतर्गत फिजिकल साइंस के यूनिट 1 में है। नेचर यानी विज्ञान की प्रकृति। तो आज मैं जो प्रकृति की बात करने जा रहा हूँ उसमें सर्वप्रथम साइंस प्रमोट्स द स्केप्टिसिज्म इन द सेंस दैट मीन्स विज्ञान संशयवाद को प्राथमिकता देता है। दूसरी मैं प्रकृति की बात करूँ तो साइंस डिमांड्स परसिवरेंस यानी विज्ञान सदैव दृढ़ता की मांग करता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यानी पॉइंट नंबर अगर मैं 9 की बात करूं तो इन फैक्ट्स दैट इज अप्रोचेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी विज्ञान हमेशा खोज की ओर प्रयास करने की बात करता है। और लास्ट में अगर बात करूं तो साइंस एज प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज यानी विज्ञान ज्ञान के निर्माण या प्रक्रिया के बारे में बात करना चाहता है या बात करता है। कहने का तात्पर्य है दैट इज द फैक्ट अबाउट द फिजिकल साइंस इज दैट ऑलवेज डिपेंड ऑन द एक्टिविटी, ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्रीवियस एक्टिविटी एंड ऑलवेज रिव्यू द प्रीवियस वर्क एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस वर्क साइंटिस्ट continue to do their project work. New facts, principles, ideas also helpful for demanding or knowing about the previous experiment or work. But on the basis of the last work or experience or related events, always helpful and encourage the next work. So, on the basis of above facts, all 4 जो जितनी मैंने बात बताया ये सभी जो 4 तथ्य हैं उसको पूरी तरह से प्रमाणित करते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने पूर्व में इंग्लिश में बताया, मैं हिंदी में स्पष्ट करूं कि विज्ञान या वैज्ञानिक विज्ञान की उन सभी क्रियाओं पर ध्यान देते हैं जो कि पूर्व में की होती है, उसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं और उन सभी चीज़ों का पता लगाते हैं। उसके बाद उसकी प्रामाणिकता की जांच करते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। मैं अब इन सभी चीज़ों को और आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, again welcome to video lecture class B.Ed semester 2 paper 8-7 physical science. Pedagogy of physical science unit 1 nature of science number 7 because the remaining 6 facts or nature of science I have already discussed in the earlier video. Number 7 science promotes skepticism. Scientists are highly skeptic people. Scientists are highly skeptic people. In sense, scientists look at everything with suspicion. Every new observation or a new theory is received with a lot of skepticism. It leads to a lot of debate among scientists. A new observation is accepted only when experimental observations have been checked by independent individuals or grouped at various places with identical results. In this debate, the status of the scientist who propose something new does not matter. Science breeds a truly condition or truly facts depends on
science breeds a truly facts or culture. Now, on this basis, this work was made by the scientist. Next point, science demands perseverance from its practitioner. There is another characteristics of science that is not generally highlighted but is really important for its development and progress. This is the condition and perseverance that science demands from scientists. A scientist getting an inspirational sorry getting an inspirational idea or a creative through on making a chance observation or otherwise has to persist with the idea to take it to its logical conclusion. Now, sometimes the scientists work alone all the way to the discovery or invention. It is a attribute to their hard work and that of the generation of scientists following them that today we have very large and efficient telescope on land as well as in space. Now, science as an approach to investigation. 9 number. Most investigation in science involve some from the scientific method. It shows creativity of humankind in seeking solution to its problem. The approach used by the scientist in the study of astronomy and ecology is observation and prediction. The essential elements of this process have been collected and proved by and controlled by scientific method. Some investigation about a particular object at different times. For example, it is a piece of a solid. This solid has a shining appearance. This solid can be beaten into sheet. This piece of solid can conduct heat and electricity. The above listed investigation have been made at different times. Now, science as process of constructing knowledge. Particular facts, that is science as process of constructing knowledge. Individuals in the same environment may possess different level of knowledge. Basic unit of knowledge is facts. Number 1, observation. Scientists usually have to find cause and effect relationship. These observations are repeated several times, sometimes by more than one person and more than one place, so that is no doubt about their correctness. Now, hypothesis. The observation of a phenomenon or facts raise certain questions, and these types of question, especially on the basis of answer to these question, the scientist thinks of a tentative explanation or formulates a hypothesis. Now next, prediction from hypothesis and its testing by experimentation. Prediction of science does not mean telling something about the future which has not occurred in the past. Full stop. It is about foretelling result of an experiment which might be obtained and have remained or not remained unnoticed to throw some light on this scientific phenomena. The hypothesis is analyzed to make prediction which is verified by experimentation. Now, last one is scientific theory. The process of formulating and verifying hypothesis continue till all the prediction of a hypothesis are found to be correct by experimentation. At this stage, possible generalization of the hypothesis are looked for.
The result are communicated to the scientific community through publication in scientific journals. Now, अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। विज्ञान की प्रकृति विज्ञान की प्रकृति के जो 6 पॉइंट है मैं पूर्व के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। आज मैं रिमेनिंग जो बचे हुए 4 पॉइंट इसके बारे में बताऊं। विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, अर्थात संशयवादी लोग वैज्ञानिक अत्यधिक है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक हर चीज़ को संदेह की नज़र से देखते हैं। उनका आधार अवलोकन करने का होता है और आपस में इससे एक बहस भी होती है। एक नया अवलोकन केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब प्रयोगात्मक टिप्पणियों को स्वतंत्र रूप से जांचा गया हो और समान परिणाम वाले विभिन्न स्थानों पर व्यक्ति या समूह उसको देखे हों और सब लोग उसको स्वीकार किए हों। कहने का तात्पर्य है कि इसी तरह से एक नया सिद्धांत भी स्वीकार किया जाता है जब पिछले सिद्धांत की गणना की जाती है और उसके आधार पर नए परिणाम, नए चीज़ पूरे प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, तभी उसे सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया बताती है कि वैज्ञानिक ईमानदारी से डेटा का अधिग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्ट करते हैं। उसके आधार पर ही नई चीज़ों को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान अपने चिकित्सकों से दृढ़ता की मांग करता है। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान की एक और विशेषता यह है कि वह सदैव अपने किए हुए कार्य को वास्तविक रूप में दिखाने के और प्रगति को दिखाने की चेष्टा करता है। यह दृढ़ता का ही आधार होता है या तब का ही आधार होता है कि उसको सही तरीके से दिखा सकता है। एक वैज्ञानिक एक प्रेरणादायक विचार या एक मौका अवलोकन एवं रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने में हमेशा ही प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सदैव तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए अपने विचार को प्रस्तुत करना रहता है। कभी कभी वैज्ञानिक खोज या आविष्कार के समय भी उन्हें अपनी शुरुआत के किए गए कार्य को भी पूरी दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि वो उस चीज़ को पूरी तरह से प्रूफ और प्रामाणिकता दे सके। यह उनकी कड़ी मेहनत और उनके वैज्ञानिकों की पीढ़ियों की एक श्रद्धांजलि होती है जिसके आधार पर वह आगे बढ़ते हैं। उसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल टेलीस्कोप है जो कि आज धरती पर नज़र आ रहा है, सब लोग उसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा एक्सरे है या रेडियो तरंग दैर्घ्य हैं या और भी जो भी सामान उपलब्ध हुए हैं या आविष्कार हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक दृष्टिकोण के रूप में विज्ञान में अधिकांश जांच में वैज्ञानिक पद्धति का न कोई रूप शामिल होता है, न ही इस पद्धति में कुछ नए चीज़ों को जान पाते हैं। यह मानव जाति की रचनात्मकता को दर्शाता है। अपनी समस्याओं को वह स्वयं समाधान करने की ओर हमेशा अग्रसर होते हैं। जैसे जैसे समय चेंज होता गया, नए आविष्कार, नए चीज़ें जो है वह हमेशा ही निर्माण होती गई हैं। आवश्यकता इस चीज़ की होती है कि कैसे वैज्ञानिक पद्धति से नए चीज़ों को स्वीकार किया जाए। कुछ जैसे कि एग्जाम्पल, किसी विशेष वस्तु के बारे में अलग अलग समय पर, जैसे कि एक ठोस का एक टुकड़ा है, इस ठोस में चमक होती है या इसे चादरों में पीटा जा सकता है, इसे खींचा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी चीज़ जो है वह पूरी तरह से स्पष्ट किए जा चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दृष्टिकोण के रूप में एक विज्ञान है। लास्ट में, विज्ञान एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में है। ज्ञान का निर्माण व्यक्ति द्वारा स्वयं के मानसिक रूप से किया जाता है और उससे उसकी क्षमताओं का पता चलता है। यह व्यक्ति की सूचना साथ ही साथ कार्य करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। इसके ज्ञान की मूल इकाई तथ्य है, जैसे कि एक एक करके मैं बताऊं। सबसे सर्वप्रथम अवलोकन। वैज्ञानिकों को खोजने के लिए और संबंध को हमेशा एक एक चीज़ को देखने के लिए उसे कितनी बार अवलोकन करना पड़ता है। अवलोकन के पश्चात ही किसी परिणाम पर वो पहुंच पाते हैं और वह परिणाम उनके किए गए कार्य के अनुसार दर्शाता है।
जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का, या और भी कितने सिद्धांत हैं विज्ञान में। नेक्स्ट में परिकल्पना, किसी घटना या तथ्यों का अवलोकन कुछ प्रश्न उठाता है और ऐसे प्रश्न ही नए चीज़ों का निर्माण करते हैं। इन सवालों का जवाब अस्थायी रूप से, परंतु वैज्ञानिक उसे प्रामाणिकता के साथ जरूर प्रस्तुत करते हैं और यह प्रामाणिकता ही मुख्य रूप से उनके नए चीज़ों का निर्माण करने में सहायक होती है। दूसरा, एक परिकल्पना से भविष्यवाणी और प्रयोग द्वारा इसका परीक्षण। जो भी परिकल्पनाएं हैं, जब तक उसका सही तरीके से परीक्षण न हो, घटनाक्रम के अनुसार न देख लिया जाए, तब तक वो चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। इसलिए प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। लास्ट में वैज्ञानिक सिद्धांत, परिकल्पना तैयार करने और उसे सत्यापित करने की प्रक्रिया तभी तक जारी रहती है जब तक कि परिकल्पना का स्पष्ट या स्पष्टीकरण न हो सके। अतः इस अवस्था में परिकल्पना के संभावित सामान्यीकरण की तलाश की जाती है, परिणामों के लिए सूचित किया जाता है और वैज्ञानिक वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशनों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय उसको पूरी तरह से समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। इस प्रकार से मैंने ये चारों प्रकृति जो थी विज्ञान की, उसके बारे में मैंने स्पष्ट किया। अगले क्लास में इसके एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।